Assalamu alaikum students. Today we are going to read lesson number 3, The Story of an Invitation. From your book New Oxford Modern English book for class 7th. The story is written by Lucy Maud Montgomery. And this is a story of two girls, Bertha Sutherland and Grace Maxwell. They are roommates at Dartmouth Academy. Bertha receives a letter from her Aunt Meg inviting her to spend the holidays at Riversdale along with other cousins. However, Bertha realizes that her shy and financially struggling friend Grace could benefit more from the invitation. Bertha writes to Aunt Meg requesting that she invite Grace instead. Aunt Meg agrees and Grace is thrilled to go. During the summer, Grace has a wonderful time at Riversdale and Aunt Meg decides to adopt her as her own daughter. Bertha receives letters from both Grace and Aunt Meg expressing their gratitude towards Bertha. Bertha is content with her selfless act and reflects on the positive outcome. She feels happy for Grace. So, this is all about the story of an invitation. A small act of kindness brings great change in the life of Grace. Let's start the reading of words to know. Bankrupt. Completely without money, financially ruined. Caramel, a smooth chew candy. Commencement means a ceremony at which academic degrees are conferred on successful students. Condemn means to express strong disapproval of. Cordial, warm, sincere, and friendly. Dartmouth, a city in Nova Scotia, Canada. Scotia means a city in Canada. Diplomatically, tactfully, sensitively. Divan, a long backless sofa. Donut, a small ring-shaped light cake. Drudgery, tediousness, or unpleasantness of work. Galore, in great numbers. Grave, dignified and somber in conduct or character. Mince pie, a small round pie with mince filling. Mourning to show grief for the dead. Pound cake, a type of cake made from a pound of flour, a pound of fruit, etc. Proverbial, of the nature of a proverb, widely referred to or famous. Solemnly, earnestly, seriously, and soberly. Trying, causing strain, hardship, or distress. Tuck out, a time to eat tuck food, especially sweets and pastry, wistfully, sadly, with yearning. Let's start the reading of the lesson. Bertha Sutherland hurried home from the post office and climbed the stairs of her boarding house to her room on the third floor. बर्था सुदरलैंड डाक खाने से जल्दी जल्दी घर आई और अपने बोर्डिंग हाउस की सीढ़ियां चढ़ते हुए तीसरी मंजिल पर वाक़ अपने कमरे में पहुंची. हर रूममेट ग्रेस मैक्सवेल वॉज सिटिंग ऑन द दीवान बाय द विंडो. उसके साथ ही ग्रेस मैक्सवेल के सोफे पे बैठी थी, लुकिंग आउट इनटू द ट्वाइलाइट. वो छटपटे में बाहर देख रही थी. ट्वाइलाइट इज अ लाइट दैट अपीयर्स ऑन स्काई बिफोर सनराइज एंड आफ्टर सनसेट. तो वो जो आसमान पे हल्की सी रोशनी होती है, दैट इज ट्वाइलाइट. A year ago, Bertha and Grace had come to Dartmouth to attend the academy and found themselves roommate. एक साल पहले बर्था और ग्रेस अकेडमी में तालीम हासिल करने के लिए डार्टमाउथ आई और खुद को एक दूसरे का रूममेट पाया. Bertha was bright, pretty and popular, the favorite of her classmates and teachers. Bertha ज़हीन, खूबसूरत और मकबूल थी और अपने क्लास फेलोज और टीचर्स की पसंदीदा थी. Grace was a grave, quiet girl dressed in mourning. Grace एक संजीदा, खामोश तबा लड़की थी और उसने मातमी लिबास पहना हुआ था. She was quite alone in the world. वो दुनिया में बिल्कुल अकेली थी. The aunt who had brought her up having recently died, और जिस खाला ने उसकी परवरिश की थी उनकी हाल ही में वफात हुई थी. At first she had for shy with bright and brilliant Bertha. पहले पहल वो ज़हीन और खुश मिजाज बर्था के सामने झिझकी, थोड़ा शर्माई.
But they soon became friends, लेकिन जल्दी वो दोस्त बन गए. And the year that followed was a very pleasant one. और इसके बाद आने वाला साल बहुत खुशगवार था. It was almost ended now, for the terminal exams had begun, and in a week's time the school would close for the holidays. ये अब तकरीबन ख़त्म हो चुका था क्योंकि आखिरी इम्तहानात शुरू हो गए थे और एक हफ्ते बाद स्कूल छुट्टियों के लिए बंद होने वाला था. Have some chocolates, Grace, said Bertha gaily. Bertha खुशी भरे अंदाज में बोली, Grace कुछ चॉकलेट खाओ. I got such good news in my letter tonight that I felt I must celebrate it fittingly. आज रात मुझे अपने ख़त में ऐसी अच्छी खबर मिली है कि मैंने ये सोचा कि भरपूर तरीके से इसको सेलिब्रेट करूं, इसको भरपूर तरीके से मनाऊं. सो आई वेंट इनटू कार्टर्स, तो मैं कार्टर्स की शॉप पे गई एंड इन्वेस्टेड ऑल माई स्पेयर कैश इन कैरमल्स, और मैंने अपने तमाम जायद पैसे कैरमल के ख़रीदने में लगा दिए. इट्स रियली फॉर्चुनेट द टर्म इज़ ऑलमोस्ट आउट. ये बहुत खुशकिस्मती की बात है कि साल ख़त्म हो चुका है. फॉर आई एम नियरली बैंकक्रप्ट, क्योंकि मैं मुकम्मल तौर पर दिवालिया हो चुकी हूँ, पैसे मेरे ख़त्म हो गए. आई हैव जस्ट एनफ लेफ्ट टू फर्निश अ टक आउट फॉर कमेंसमेंट नाइट एंड नो मोर. मेरे पास बस इतने पैसे बचे हैं कि मैं इनामात की तकरीब के लिए कुछ चीज़ें, खाने पीने की चीज़ें हासिल कर लूँ, और इसके अलावा मेरे पास कुछ भी नहीं. What is your good news, may I ask? said Grace. Grace ने कहा, अच्छा अब वो खुशखबरी बताओ, क्या मैं पूछ सकती हूँ क्या खुशखबरी है? You know, I have an Aunt Margaret, commonly called Aunt Meg. तुम्हें पता है ना, मेरी खाला है Aunt Margaret, जिनको आमतौर पर खाला मैग कहा जाता है. आउट एट रिवर्सडेल होती हैं, डोंट यू? क्या तुम्हें नहीं पता? There never was such a dear, sweet, jolly aunt in the world. पूरी दुनिया में उन जैसी कोई अच्छी, खुश मिजाज और प्यारी खाला हो ही नहीं सकती. आई हैड ए लेटर फ्रॉम हर टू नाइट. मुझे आज उनकी तरफ से ख़त मिला है. लिसन, आई विल रीड यू व्हाट शी सेज. सुनो, मैं तुम्हें पढ़ के सुनाती हूँ वो क्या कहते हैं. आई वॉन्ट यू टू स्पेंड योर हॉलीडेज विद मी माई डियर. मेरी प्यारी, मैं चाहती हूँ तुम अपनी छुट्टियाँ मेरे साथ गुजारो. Merry Fairweather and Louis Fishy and Lily Dennis are coming too. Merry Fairweather और Louis Fishy and Lily Dennis भी आ रही हैं. So there is just room for one more. तो सिर्फ एक की गुंजाइश बाकी है, and that one must be yourself. और वो एक तुम ही को होना चाहिए. Come to Riversdale when school closes. जब स्कूल बंद हो जाए तो रिवर्सडेल आ जाओ, एंड आई विल फीड यू ऑन स्ट्रॉबेरीज एंड क्रीम एंड पाउंड केक एंड डोनट्स एंड मिन्स पाई. और मैं तुम्हें ये सारी चीज़ें खिलाऊंगी. एंड ऑल द डिलीशियस इनडाइजेस्टिबल थिंग्स, और तमाम मज़ेदार और ना हज़म होने वाली चीज़ें, ऐसी चीज़ें जो आमतौर पर बड़े मना करते हैं. तो कहती है आप लोग अपनी मर्ज़ी से खाना. दैट्स स्कूल गर्ल्स लव एंड केयरफुल मदर्स कंडेम. वो चीज़ें जो स्कूल जाने वाली बच्चियाँ पसंद करती हैं और ख्याल रखने वाली माएँ उनकी मुखालफत करती हैं. मैरी एंड लू एंड लिल आर गर्ल्स आफ्टर योर ओन हार्ट. मैरी, लू और लिल तुम्हारी अपनी मिजाज की बच्चियाँ हैं. आई नो, मुझे पता है. यू शेल ऑल डू जस्ट एज यू लाइक. और तुम सब वो सब कुछ करोगे जो तुम्हें पसंद है. एंड वी विल हैव पिकनिक्स एंड पार्टीज एंड मैरी डूइंग्स गैलोर. और भी हम पिकनिक करेंगे, पार्टीज करेंगे और बहुत से हंसी खेल के काम करेंगे. There, said Bertha, looking up with a laugh. Isn't that lovely? लो, बर्था ने ऊपर देखते हुए हंसते हुए कहा, क्या ये बहुत प्यारी सी बात नहीं है? Your page number 33. How delightful it must be to have friends like that to love you and plan for you, said Grace wistfully. ऐसे दोस्त होना जो तुम्हें प्यार करें और तुम्हारे लिए मंसूबे बनाएं, कितनी खुशी की बात होगी. ग्रेस ने हसरत भरे अंदाज में कहा. आई एम श्योर यू विल हैव अ प्लेजेंट वेकेशन बर्टी. बर्टी, मुझे यकीन है कि तुम्हारी छुट्टियां बहुत खुशगवार गुजरेंगी. एज फॉर मी, जहाँ तक मेरा ताल्लुक है, आई एम गोइंग इन टू क्लार्क मैन्स बुक स्टोर अंटिल स्कूल ओपन्स. मैं स्कूल के दोबारा खुलने तक क्लार्क मैन की किताबों की दुकान पर काम करूँगी.
I saw Mr. Clarkman today and he agreed to take me. मैं आज मिस्टर क्लार्कमैन से मिली, उन्होंने मुझे काम देने की हामी भर ली। बर्था looked surprised. बर्था हैरान हो गई। She had not known what Grace's vacation plans were. उसे पता नहीं था कि छुट्टियों के हवाले से बर्था के मंसूबे क्या थे। I don't think you ought to do that, Grace, she said thoughtfully. मैं नहीं समझती कि तुम्हें ऐसा करना चाहिए, ग्रेस, उसने पुरसोच लहजे में कहा। यू आर नॉट स्ट्रॉन्ग, तुम मजबूत नहीं हो, ताकतवर नहीं हो, एंड यू नीड अ गुड रेस्ट, और तुम्हें बहुत आराम की ज़रूरत है। इट विल बी ऑफुली ट्राइंग टू वर्क एट क्लार्क मैंस ऑल समर। तुम्हें अच्छी तरह आराम करने की ज़रूरत है, पूरा मौसम गर्मा क्लार्क मैन के यहाँ काम करना बहुत थका देने वाला होगा, तुम थक जाओगी। देयर इज़ नथिंग एल्स फॉर मी टू डू, मेरे पास करने के लिए और कुछ नहीं है, मतलब मेरे पास और कोई चारा नहीं है, सेड ग्रेस ने कहा। ट्राइंग टू स्पीक cheerfully, उसने अपने लहजे में थोड़ा खुशगवार तासुर देने की कोशिश की कि वो खुशी से बात करी। यू नो आई एम एज poor एज द proverbial church mouse, तुम्हें पता है मैं इतनी ज़्यादा गरीब हूँ, जैसे वो मुहावरा है ना, गिरजा घर के चूहे जैसी गरीब, तो मैं वैसी गरीब हूँ। बटी, and the simple truth is that I can't afford to pay my board all summer and get my winter outfit unless I do something to earn it. और सच्ची बात तो ये है कि मैं पूरी गर्मियाँ अपने वहाँ रहने का खर्चा देने और अपने लिए सर्दियों का लिबास ख़रीदने के लिए मैं अफोर्ड ही नहीं कर सकती, मैं मुतहम्मिल नहीं हो सकती जब तक कि मैं उसके लिए काम ना करूँ। आई शील बी टू बिजी टू बी लॉन्सम, मैं इतनी मसरूफ़ हो जाऊँगी कि मुझे तन्हाई का एहसास ही नहीं होगा। एंड आई शेल एक्सपेक्ट लॉन्ग न्यूज़ी लेटर्स फ्रॉम यू टेलिंग मी ऑल योर फन पासिंग योर वेकेशन ऑन टू मी एट सेकेंड हैंड, और मैं तुम्हारी तरफ से लंबे लंबे ख़बरों भरे खतूत की तवक्को करूँगी। मुझे तुम्हारे सारे हल्ले गुल्ले के बारे में तुम बताओगी और अपनी छुट्टियाँ बिलवास्ता तौर पर मुझ तक पहुँचाओगी। फ़र्स्ट हैंड तो ये होता ना कि वो वहाँ खुद जाके सारी चीज़ें एंजॉय करती, तो सेकंड हैंड का मतलब ये है कि वो अपने ज़रिए से अपनी सारी एंजॉयमेंट उसके साथ शेयर करेगी, और तो ग्रेस को पता चलता जाएगा कि बर्था वहाँ छुट्टियाँ कैसे गुजार रही। यू सी वेल आई मस्ट सेट टू वर्क एट दोस अलजेब्रा प्रॉब्लम्स, अब वो वहाँ से हटना चाह रही, टॉपिक चेंज करना चाह रही, क्योंकि वो खुद भी बहुत उदास हो गई है। हो सकता है उसको अपने पेरेंट्स याद आए। तो कहती है कि समझी तुम, अब मुझे अलजबरा के वो मसाइल हल करने पे काम शुरू कर देना चाहिए। आई ट्राइड देम बिफोर डार्क, जो मैंने अंधेरा फैलने से पहले करने की कोशिश की थी, बट आई कुडंट सॉल्व देम, लेकिन मैं उनको हल नहीं कर सकी थी। माई हेड एक्ट, मेरी सर में दर्द शुरू हो गई, एंड आई फेल्ट सो स्टूपिड, और मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं बहुत बेवकूफ़ हूँ। हाउ ग्लैड आई शैल बी व्हेन एग्ज़ाम्स आर ओवर, जब इम्तिहान ख़त्म हो जाएंगे तो मैं कितनी खुश होंगी। बेरब्त बातें कर रही है ना, हटना चाह रही है इस टॉपिक से वो। आई सपोज आई मस्ट रिवाइज दैट सीनियर इंग्लिश दिस मॉर्निंग, सेड बर्था एब्सेंटली। मेरा ख्याल है कि आज रात मुझे सीनियर इंग्लिश की दोहराई करनी चाहिए। बर्था ने भी गैर दिमागी के आलम में कहा है, उस वो भी कहीं और ही सोच रही, बट शी मेड नो मूव टू डू सो। कहा है उसने कि मैं सीनियर इंग्लिश पढ़ने लगी हूँ, लेकिन वो हिली नहीं अपनी जगह से। शी वॉज स्टडिंग हर फ्रेंड्स फेस, वो अपनी दोस्त का चेहरा पढ़ रही थी। हाँ वेरी पेल एंड थिन ग्रेस लुक्ड, ग्रेस कितनी कमज़ोर और पीली लग रही थी। श्योरली मच पेलर एंड थिनर देन शी हैड कम टू द अकेडमी, उससे भी ज़्यादा कमज़ोर और पीली जितनी कि जब वो अकेडमी आई थी तब भी वो कमज़ोर थी। एंड शी हैड नॉट बाय एनी मीन्स बीन प्लम्प एंड रोजी देन, और तब भी कोई वो फरबा या सुरखो सफ़ेद नहीं थी। आई बिलीव शी कुड नॉट स्टैंड 2 months एट क्लार्कमैन्स, मेरा ख्याल है ये क्लार्कमैन के यहाँ 2 महीने की सख्ती बर्दाश्त नहीं कर पाएगी। बर्ता ने सोचा, इफ़ आई वर नॉट गोइंग टू आंट मैग, अगर मैं खाला मैग के घर ना जा रही होती, आई वुड आस्क हर टू गो होम विद मी, तो मैं उसे कहती कि मेरे साथ मेरे घर चलो। और इवन इफ़ आंट मैग हैड रूम फॉर अनदर गेस्ट, और अगर खाला मैग के पास एक और
मेहमान की गुंजाइश होती, आई वुड जस्ट राइट हर ऑल अबाउट ग्रेस एंड आस्क इफ आई कुड ब्रिंग हर विद मी। तो मैं खाला को उसके बारे में सारा कुछ लिख भेजती और कहती कि क्या मैं उसको साथ ला सकती हूँ। आंट मैग वुड अंडरस्टैंड। खाला मैग समझ जाती। शी ऑलवेज अंडरस्टैंड्स, वो हमेशा समझ जाती हैं। बट शी हैज़ नॉट, लेकिन अब तो उनके पास गुंजाइश ही नहीं है। सो आई कैंट बी, इट कैंट बी, तो ऐसा नहीं हो सकता। जस्ट देन अ थॉट darted into बर्था's brain। उसी लम्हे एक ख्याल बर्था के दिमाग में आया। What nonsense! कैसी अहमकाना बात है। She said aloud so suddenly and forcibly that Grace fairly jumped. What is? उसने बुलंद आवाज में इतनी अचानक इतने जोर से कहा कि ग्रेस जोर से उछल पड़ी। What is? क्या है? ओह नथिंग मच। ओह नहीं, कुछ खास नहीं, कुछ ज्यादा नहीं। सेड बर्थान, बर्था ने कहा, गेटिंग अप ब्रिस्कली, तेजी से उठते हुए। सी हियर, देखो, आई एम गोइंग टू गेट टू वर्क, मैं काम करने लगी हूँ। आई हैव वेस्टेड इनफ टाइम, मैंने पहले ही बहुत वक्त ज़ाया कर दिया। शी curled herself up on the divan and tried to study her senior English, but her thoughts wandered hopelessly. वो दीवान के ऊपर बैठ गई सिमट के और सीनियर इंग्लिश पढ़ने की कोशिश करने लगी, लेकिन उसकी सोचें मायूसी से इधर उधर भटक रही थी। एंड फाइनली शी गेव इट अप इन डिस्पेयर एंड वेंट टू बेड। आखिरकार उसने मायूसी में इसको छोड़ दिया और सोने के लिए चली गई। देयर शी कुड नॉट स्लीप, वहाँ पे वो सो नहीं सकी। शी ले अवेक, वो जागती रही एंड रेसल्ड विथ हरसेल्फ, और खुद से लड़ती रही। इट वॉज आफ्टर मिड नाइट वेन शी सेट अप इन बेड एंड सेड सोलमली, आई विल डू इट। आधी रात के वक्त वो उठ के बैठ गई और उसने अपने आप से कहा, मैं ये करूँगी। नेक्स्ट डे बर्था रोट अ कॉन्फिडेंशियल लेटर टू आंट मैग। अगले दिन बर्था ने खाला मैग को एक खुफिया ख़त लिखा। शी थैंक्ड हर फॉर हर इनविटेशन एंड देन टोल्ड हर ऑल अबाउट ग्रेस। उसने उनकी दावत का शुक्रिया अदा किया, उसके बाद ग्रेस के बारे में सारी बातें बताईं। एंड व्हाट आई वांट टू आस्क आंट मैग इज़ दैट यू विल लेट मी ट्रांसफ़र माई इन्विटेशन टू ग्रेस। और खाला मैग, जो मैं कहना चाहती हूँ वो ये है कि मुझे आप इजाज़त दें कि मैं ये दावतनामा ग्रेस तक मुंतकिल कर दूँ एंड आस्क हर टू गो टू रिवर्सडेल दिस समर इन माई प्लेस। और उससे कहूँ कि इस मौसम गर्मा में मेरी जगह पे रिवर्सडेल चली जाए। डोंट थिंक मी अनग्रेटफुल, मुझे नाशुक्री मत समझें। नो, आई एम श्योर यू वॉन्ट, मुझे पता है कि आप ऐसा नहीं समझेंगी। यू ऑलवेज अंडरस्टैंड थिंग्स, आप हमेशा ही चीज़ों को समझती हैं। बट यू कैंट हैव अस बोथ, लेकिन आप हम दोनों को रख नहीं सकती। एंड आई वुड रादर ग्रेस शुड गो, और मैं ये समझती हूँ कि ग्रेस को जाना चाहिए। इट विल डू हर सो मच गुड, इससे उसको बहुत फ़ायदा होगा, उसके लिए बहुत अच्छा होगा। एंड आई हैव अ लवली होम ऑफ माई ओन टू गो टू। मेरे पास तो बहुत प्यारा सा घर है जहाँ मैं जा सकती हूँ। एंड शी हैज़ नन, और उसके पास नहीं है। आंट मैग अंडरस्टूड एज यूजुअल। खाला मैग हमेशा की तरह समझ गई। इट वॉज परफेक्टली विलिंग, और मुकम्मल तौर पे आमादा हो गई। सो शी रोट टू बर्था एंड इनक्लोज अ नोट ऑफ इनविटेशन फॉर ग्रेस। तो उन्होंने बर्था को ख़त लिखा और ग्रेस के लिए एक दावतनामा इसमें डाल दिया। आई शिल हैव टू मैनेज दिस अफेयर वेरी केयरफुली, मुझे ये काम बड़ी एहतियात से करना होगा। बर्था रिफ्लेक्टेड, बर्था ने संजीदगी से सोचा। ग्रेस मस्ट नेवर सस्पेक्ट दैट आई डिड इट ऑन पर्पस। ग्रेस को कभी शक नहीं होना चाहिए कि मैंने ये सब जानबूझ के किया। आई विल टेल हर दैट सर्कमस्टेंसेस हैव प्रिवेंटेड मी फ्रॉम एक्सेप्टिंग आंट मैग्स इनविटेशन। मैं उसे बताऊंगी कि हालात ने मुझे खाला मैग की दावत कबूल करने से रोक दिया। दैट इज़ ट्रू इनफ, और ये बात सच भी है। नो नीड टू से दैट द सर्कमस्टेंसेस आर हर्स नॉट माइन। और ये कहने की ज़रूरत नहीं कि हालात उसके थे, मेरे नहीं। एंड आई विल से आई जस्ट आस्क आंट मैग टू इनवाइट हर इन माई प्लेस। और मैं उससे कहूँगी कि मैंने खाला से ये कहा था कि तुम्हें मेरी जगह पे बुला लें, एंड दैट शी हैज़ डन सो, और यही उन्होंने किया है। व्हेन ग्रेस केम होम फ्रॉम हर हिस्ट्री एग्जामिनेशन दैट डे, जब उस दिन
ग्रेस अपना तारीख का इम्तिहान देकर घर आई। बर्था टोल्ड हर द स्टोरी। बर्था ने उसे कहानी सुनाई एंड गेव हर आंट मैक्स कॉर्डियल नोट, और उसे खाला मैक का मोहब्बत भरा रुका भी दिया। यू मस्ट कम टू मी इन बर्था's प्लेस, रोड द लेटर। तुम्हें मेरे पास बर्था की जगह पे आना चाहिए, बाद वाले ने लिखा। लेटर मीन्स बाद वाला, लाइक आंट मैक। आई फील एज इफ आई न्यू यू फ्रॉम हर लेटर्स। मुझे ऐसा लगता है कि उसके खत पढ़ के मैं तुम्हें बहुत जानने लगी हूँ। एंड आई विल कंसिडर यू एज अ सॉर्ट ऑफ ऑनरेरी नेस, और मैं तुम्हें एजाजी भतीजी समझूंगी। एंड आई विल ट्रीट यू एज इफ यू वर बर्था हरसेल्फ, और मैं तुम्हारे साथ ऐसा बर्ताव करूंगी जैसा कि तुम खुद बर्था हो। इजंट इट स्प्लेंडेड ऑफ आंट मैक? क्या ये खाला मैक की तरफ से बहुत अच्छी बात नहीं है? सेड बर्था डिप्लोमेटिकली। बर्था ने बहुत बात संभालते हुए कहा, ऑफ कोर्स यू विल गो ग्रेस। ग्रेसी यकीनन तुम जाओगी। ओह आई डोंट नो, सेड ग्रेस इन बेविल्डरमेंट। ग्रेस ने थोड़ा चिकराते हुए कहा, उसको समझ ही नहीं आई हो क्या रहा है। तो बड़ी परेशानी और घबराहट के आलम में कहती है, मुझे नहीं पता। आर यू श्योर यू डोंट वांट टू गो बर्था? बर्था, क्या तुम्हें यकीन है कि तुम जाना नहीं चाहती? इंडीड आई डू वांट टू गो ड्रेडफुली। असल में मैं जाना चाहती हूँ, बहुत ज़्यादा शिद्दत के साथ मेरा दिल चाहता है कि मैं जाऊँ, सेड बर्था फ्रैंकली। बर्था ने बेतकल्लुफ़ी से कहा, बट एज आई हैव टोल्ड यू, लेकिन जैसा कि मैंने तुम्हें पहले बताया है, इट इज़ इम्पॉसिबल, ये मुमकिन है। बट इफ़ आई एम डिसअपॉइंटेड, लेकिन अगर मैं अब मायूस हुई हूँ, आंट मैक्स मस्ट नॉट बी। तो खाला मैक को मायूस नहीं होना चाहिए, उनको इनकार मत करना। यू मस्ट गो, तुम्हें जाना चाहिए ग्रेस। ग्रेस, तुम्हें जाना चाहिए, दैट इज़ ऑल देयर इज़ अबाउट इट, और यही सारी बात है। इन द एंड ग्रेस डिड गो, अ लिटिल पजल्ड एंड डाउटफुल स्टिल। आखिरकार ग्रेस चली गई, कुछ उलझी हुई, कुछ शक और शुबे में मुब्तला, but thankful beyond words to escape the drudgery of the counter and the noise and heat of the city. लेकिन काउंटर की नागवार मशक्क़त और शहर के शोरगुल और गर्मी से बच निकलने पर इतनी शुक्रगुजार कि कुछ कहने से भी कासिर थे। बर्था वेंट होम। बर्था अपने घर चली गई, फीलिंग अ लिटिल बिट ब्लू इन सीक्रेट। दिल में थोड़ी सी उदासी महसूस कर रही थी। इट कैन नॉट बी डिनाइड, इससे इनकार नहीं किया जा सकता, बट ऑल्सो फीलिंग क्वाइट श्योर दैट इफ़ शी हैड टू डू इट ऑल ओवर अगैन शी वुड डू जस्ट द सेम। लेकिन उसके दिल में ये एहसास भी था कि अगर उसे कभी दोबारा ऐसी नेकी करने का मौका मिला तो वो ज़रूर करेगी। दिल में उदासी कुदरती बात है, क्योंकि वो भी खाला के पास जाना चाहती थी, एंजॉय करना चाहती थी। उसने अपनी जगह पे अपने दोस्त को भेजा, लेकिन उसके दिल में अभी भी उस जगह पे जाने का शौक था। The summer slipped quickly by, and finally 2 letters came to Bertha, one from Aunt Meg and one from Grace. गर्मियां तेजी से गुजर गईं, बिलाखिर बर्था को 2 खत आए, एक आंट मैग की तरफ से और एक ग्रेस की तरफ से। I have had a lovely time, wrote the letter. Letter means the second person in a conversation. Saniya zikr in Urdu. I have had a lovely time. मेरा वक्त बहुत अच्छा गुजरा, सानिया जिक्र ने कहा। And oh Bertie, what do you think? Oh Bertie, तुम्हारा क्या ख्याल है? I'm to stay here always. मुझे यहाँ हमेशा रहना होगा। Oh of course, oh बेशक। I'm going back to school next month. मैं अगले माह वापस स्कूल जा रही हूँ, बट दिस इज़ टू बी माई होम आफ्टर दिस। लेकिन इसके बाद यही मेरा घर होगा। आंट मैग, खाला मैग, शी मेक्स मी कॉल हर दैट। वो चाहती हैं कि मैं उन्हें खाला कह के बुलाया करूँ। सेज आई मस्ट स्टे विद हर फॉर गुड। कहती हैं कि मुझे हमेशा उनके साथ रहना होगा। इन आंट मैग्स लेटर was this paragraph. खाला मैग के ख़त में ये पैराग्राफ था। Grace is writing to you and will have told you that I intend to keep her here.
ग्रेस तुम्हें ख़त लिख रही है और उसने तुम्हें बता दिया होगा कि मैं उसे यहाँ रखने का इरादा रखती हूँ। यू नो, आई हैव ऑलवेज वांटेड अ डॉटर ऑफ माय ओन। तुम जानती हो कि मेरी हमेशा से ये ख्वाहिश थी कि मेरी अपनी एक बेटी हो, बट माई ग्रीडी ब्रदर्स एंड सिस्टर वुड नेवर गिव मी वन ऑफ देयर्स। लेकिन मेरे लालची भाइयों और बहनों ने कभी अपनी बेटियों में से एक भी मेरे हवाले नहीं की, एक को भी मुझे नहीं दिया। सो आई इंटेंड टू अडॉप्ट ग्रेस, इसलिए मैं ग्रेस को गोद लेने का इरादा रखती हूँ। शी इज़ द स्वीटेस्ट गर्ल इन द वर्ल्ड। वो दुनिया की सबसे अच्छी लड़की है एंड आई एम वेरी ग्रेटफुल टू यू फॉर सेंडिंग हर हेयर। और मैं तुम्हारी बहुत शुक्रगुजार हूँ कि तुमने उसे यहाँ भेजा। यू विल नॉट नो हर व्हेन यू सी हर। जब तुम उसे देखोगी तो पहचान नहीं पाओगी। शी हैज़ ग्रोन प्लम्प एंड रोजी। वो फरबा अंदाम और सुरखो सफ़ेद हो गए। बर्था फोल्डेड हर लेटर्स अप विद अ स्माइल। बर्था ने अपने खत एक मुस्कुराहट के साथ तय किए। आई हैव अ वेग डिलाइटफुल फीलिंग। मुझे मुबहिम सा खुशगवार सा एहसास हो रहा है दैट आई एम द गुड एंजल इन अ स्टोरी बुक, कि मैं कहानियों की किताब की एक अच्छी फरिश्ता हूँ। ओल्ड इंग्लिश लिटरेचर में बहुत सी कहानियाँ आपको ऐसे मिलेंगी जिसमें परेशान हाल लोगों की तकलीफ़ें दूर करने के लिए फरिश्ते आते हैं और उनकी ज़िंदगी को आसान बनाते हैं, खुशियाँ लाने का बायस बनते हैं। तो कहती है कि चूँकि उसने भी एक बहुत बड़ी नेकी की है और ग्रेस को घर मिल गया, फैमिली मिल गई है, और ये सब इस तरह से मुमकिन हुआ कि बर्ता ने ग्रेस को अपनी जगह पे खाला के पास भेजा। सो उसको लगता है कि उसने रिश्तों जैसा नेक काम किया। दिस इज़ ऑल अबाउट योर लेसन, द स्टोरी ऑफ एन इनविटेशन। होप यू हैव गॉट बेटर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द लेसन। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफ़िज़।